Good morning to everyone. So we have started with hire purchase, and I have explained about the journal entries, and also we have done the introduction. So today we will start with our first sum of hire purchase. What is hire purchase? Hire purchase is an agreement between two parties, which is the buyer and the seller, on purchase and sale of a asset. जो खरीद रहा है उसके लिए it is a purchase of asset, and the seller he is continuously selling a particular उसके लिए goods है because वो continuously sell करता है. And इसमें कैसे purchase होता है? Like the payment is not made at once, it is made on installment basis. So let us read the first sum. The purchase price of a motor car purchased by Car Mart and Company. Who is purchasing motor car? Car Mart and Company. तो Car Mart and Company is the buyer. Buyer को हम क्या बोलते हैं? Hire purchaser. So he is the hire purchaser. Hire purchaser का नाम क्या है? Car Mart Company. On what? On hire purchase. This purchase is on hire purchase from Auto Riders Company. Auto Riders Company is the seller. Seller means the hire vendor. Seller vendor is rupees 37,250. Purchase price, that is the cash price, is 37,250. कार का कॉस्ट कितना है? 37,250. कभी परचेज किया? 1st January 2011. It is available on hire purchase on the following terms. अब हायर परचेस एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स मीन्स कंडीशन. व्हाट इज द कंडीशन? इनिशियल अमाउंट पेएबल is rupees 10,000. Now what do you mean by initial amount? Initial amount is the first payment, which is also known as a down payment. So down payment जिससे कार, मोटर कार घर पे लेके जाएंगे, that is 10,000. How much is the down payment? Down payment is the initial payment, which is 10,000, which is made by the hire purchaser to the vendor is 10,000. Total amount of interest at 5% per annum is 27,250. So total interest जो पे होगा पूरे purchase में it is 2,750. It is 2,750 and rate of interest is 5%. Rate of interest is 5%. Balance amount means 37,250 में 10,000 initial payment या down payment, remaining amount will be 37,250 minus 10,000, which will be 27,250. Balance amount is payable in 3 installment. अब देखो 27,250 पे करना है, but हम कितना installment दे रहे? 3 installment, 10,000 each. So 10 plus 10 plus 10 is 30,000, but we have to pay only 27,250. We have to pay only 27,250, but we are paying 30,000. Installment 3 बार 10,000 का पे करेंगे, तो 30,000 होता है. We are paying more than the balance amount. See how much is the cost of the car? 37,250. Cost of the car is 37,250. 10,000 is the down payment. Means we have to pay 37,250 minus 10,000. We have to pay only 27,250. But how much we are paying? 3 बार 10,000. That is 30,000. तो जो extra pay करेंगे वो extra क्या है? It is the interest. It is how much? 27,250 at total. So 27,250 plus 2,750 हमें 30,000 देगा. तो इंस्टॉलमेंट जो है 10,000 का 3 बार, उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है. It also includes what?
It includes interest. So next what is given? When is the installment paid? On 31st December every year, and 10,000 का 3 बार इंस्टॉलमेंट पे करना है. कभी 31st December every year till we pay the full amount. Charge depreciation at 10% under straight line method, which is also known as original cost fixed installment method, wherein every year the rate of depreciation will remain the same. उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट, जिसमें हमें सेम depreciation मिलेगा. There are two methods of depreciation. One is straight line, other one is reducing balance method, जिसमें हम हर बार क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, व्हाटएवर अमाउंट कम्स उसमें डेप्रीसिएशन निकालते. बट स्ट्रेट लाइन मेथड में हम हमेशा डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकालते हैं. व्हाट इज डेप्रीसिएशन? इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट. So past journal entries in the books of Carmart, who is the hire purchaser or the hirer, and Auto Riders Company, who is the vendor, that is the seller. तो कभी भी है ना journal entry पूछा है, what has been asked? We have to prepare journal entry. But journal entry करने से पहले, journal entry solve करने से पहले, what we will have to do? Journal entry solve करने से पहले we will have to calculate the amount of interest. हमें total interest पता है. What we know? We know total interest is 2750. But हम वो 3 installment में देने वाले. So every year how much is the interest has to be calculated. Every year interest has to be calculated. So let us start. Let us calculate the interest and the depreciation. तो हमारा पहला स्टेप रहेगा calculation of interest and depreciation. So date column, cash price, interest, installment, balance, cash price and depreciation. So let us give it date. What is the next? Cash price. Interest, installment, balance, cash price. What is cash price? It is the original cost of the asset. यहाँ पे cash price कितना है? 37,250. That is the cash price. And finally इधर हम लिखेंगे depreciation. ये भी हमें calculate करना है. We have to calculate two things. One is the interest and second is the depreciation. क्यों important है? Journal entry में हमें मालूम होना चाहिए that how much interest has to be paid. Installment is given ना 10,000 3 बार, और हमें चाहिए balance depreciation rate दिया है 10%. That we will have to calculate, and depreciation has to be calculated at the year end. And every year, पता है depreciation कब calculate करते हैं? Year end में, because final accounts निकालते वक्त we require depreciation also. Let us start the sum. Tell me, when has this hire purchase agreement started? देखो जब Carmart कंपनी ऑटो राइडर कंपनी के पास गया on 1st January 2011. So 1st January 2011 को what happened? There was a purchase of the motor car. But tell me, क्या पूरा कैश प्राइस पे किया 1st January 2011 को? कितना पे किया? How much was the initial amount which has to be paid in order to take the motor car to the
टू टेक द मोटर कार बाय कारमार्ट एंड कंपनी। कारमार्ट एंड कंपनी को अगर मोटर कार लेके जाना है तो उसको कितना इनिशियल पेमेंट करना पड़ेगा, which is also known as the down payment, that is 10,000. So कितना कैश प्राइस पे किया, 10,000. एंड डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता, that I have explained you. कैश प्राइस में I mean जो हमारा डाउन पेमेंट होता है, it is only cash price. It does not include interest, because same day when you are making the purchase, you are paying the down payment. So down payment में interest क्या है, nil. डाउन पेमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. So हम कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे, 10,000. इंस्टॉलमेंट may include interest or may not include interest. So balance cash price कितना है? Can anyone tell me? 37,250 is the cash price, original cost of the asset. 10,000 pay कर दिया. So how much is the balance cash price? 27,250. ये कैसे मिला? I am showing in the bracket 37,250 minus 10,000. We are getting 27,250. जिस दिन असेट खरीदते हैं उस दिन डेप्रिसिएशन रहता है क्या? So 1st January 2011 सेम डे मोटर कार हैज बीन परचेज, सो उस दिन कोई डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा. नाउ वी विल डायरेक्टली गो टू द ईयर एंड. जब इंस्टॉलमेंट पे करना है, टेल मी इंस्टॉलमेंट पे करने का डेट क्या है? इंस्टॉलमेंट पे करने का डेट है 31st December every year. When we have to pay the installment, 31st December every year. We have read the question. So 1st January 2011 में 31st December आएगा, 2011 ईयर में 31st December आएगा. तो ये टाइम पे इंस्टॉलमेंट कितना है? 10,000. उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है एंड कैश प्राइस भी इंक्लूडेड है. So now we will have to calculate how much is the interest, and 10,000 में interest का amount कितना है and cash price का amount कितना है. उसके लिए let us go to the working note and calculate interest on installment on which date? 31/12/2011. सो हमेशा इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट आप हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कैलकुलेट करते हो, बैलेंस कैश प्राइस में. देखो, इंटरेस्ट इज द रेम्यूनरेशन, इज द कॉम्पेंसेशन दैट इज पेड फॉर द सैक्रिफाइस यू आर मेकिंग. अगर आप पूरा 37,250 पे करते मोटर कार का प्राइस, तो क्या आपको इंटरेस्ट मिलता? नहीं. बट आपने, क्योंकि सेलर ने पैसा आज नहीं लिया, he is taking the money in the future, he has to get something in exchange, something as a compensation. That compensation is the interest. So यहाँ पे 27,250 है जो बैलेंस कैश प्राइस है. इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस कैश प्राइस पे निकालना है. किस पे निकालना है? बैलेंस कैश प्राइस पे. कितना परसेंटेज है इंटरेस्ट का? 27,250 पे इंटरेस्ट का परसेंटेज इज गिवन. सी, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट 5% पर एनम. कितना सैक्रिफाइस किया ऑटो राइडर्स ने 1st Jan से 31st December? टेल मी, 1st January से 31st December हाउ मेनी मंथ्स? 1st January से 31st December. January to December is 12 months. All of you agree? So can I write here 1 year, or I can write 12/12? 12/12 is 1. 12 ones are 12 ones are is 1. So कितना आंसर आएगा? 27,250. कैलकुलेट करो. 27,250 into 5% into 12/12 is 1.
इंटू 1 तो आता है 1362.5 0.5 या 5 के ऊपर डेसिमल होगा तो 62 हो जाएगा 63 बराबर 62.5 हो जाएगा 63. So we got the interest. Interest is 1363. So cash price कितना रहेगा 10,000 में आपने इंटरेस्ट दिया 1363. So how much will be the interest? I mean the cash price. Interest is 1360. तो 10,000 minus 1363 करो. ये हमने दिया for the motor car. ये हमने क्यों दिया? This we have paid for the motor car 8637. कैसे मिला ये? 10,000 minus 1363 करो. You will get 8637. So now how much is balance? Now how much is balance to be paid? सब क्या बैलेंस कैश प्राइस कैसे आता है कि हम पहले कितना बाकी था? पहले बाकी था 27,250. उसमें हमने कितना पे किया? 8637. So अभी कितना बैलेंस है? हाउ मच इज बैलेंस नाउ? जो अभी भी पे करना बैलेंस है कैश प्राइस. हमें टोटल 37,250 पे करना था. हमने 10,000 डाउन पेमेंट में पे किया. 10,000 डाउन पेमेंट में पे किया. तो अभी कितना पे करना बाकी है? 27,250 माइनस 8637. वी आर गेटिंग 18,613. अभी बैलेंस कैश प्राइस कितना है? 18,613. How much is the balance cash price? 18,613. But year end है अभी 31 दिसंबर. डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा. डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलता है. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 37,250. ओरिजिनल कॉस्ट इज 37,250. So we will calculate depreciation. Calculation of depreciation. So 37,250 into how much is the rate of depreciation? Rate of depreciation क्वेश्चन में दिया है 10%. चार्ज depreciation at 10% per annum under straight line method. तो दिसंबर जैन को मशीनरी परचेज किया, दिसंबर को डेप्रिसिएशन निकाल रहे. तो कितना महीना होता है जैन से दिसंबर? इज 12 month. 12 upon 12. So this will be 3725. 3725 आंसर आएगा आपको when you calculate the depreciation. So we can write here 3725. How much it is? 3725. Now हमें इंस्टॉलमेंट कितने बार पे करना है? क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट? 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000. एक इंस्टॉलमेंट हो गया. अब फिर से 31 दिसंबर को फिर से इंस्टॉलमेंट पे करेंगे एंड अभी हो जाएगा 2012. They have told in the question 3 installment on 31st December every year. Question में दिया है 3 installment of rupees 10,000 each on 31st December every year. So again हम कितना पे करने वाले? 10,000 का इंस्टॉलमेंट. नाउ टेल मी ये इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है. इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते? बैलेंस कैश प्राइस पे. किस पे करते? बैलेंस कैश प्राइस पे. सो अगेन लेट अस गो. दिस वाज फर्स्ट वन. नाउ सेकेंड ईयर में, हमारे नेक्स्ट ईयर में अगेन वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन installment on 31
12/12/2012. अगेन बैलेंस कैश प्राइस कितना है? 18,613. So we will write 18,613 and interest percentage is 5% into again 1 year. 12/12 is 1. कब से कब तक इंटरेस्ट? जनवरी से दिसंबर, बिकॉज लास्ट इंटरेस्ट हमें मिला था, लास्ट इंस्टॉलमेंट वी गॉट ऑन 31st December. So every year 31st December मीन्स 1 ईयर का हमें वेट करना पड़ता है इंस्टॉलमेंट के लिए. तो उतने महीने का इंस्टॉलमेंट रहेगा. तो कैलकुलेट 18,613 into 5% into 1, we get 930.65. 0.6 मतलब मोर देन 5. तो 30 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा. सो हमें इंटरेस्ट मिल गया. हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ मच इट इज 931. सो हाउ मच विल बी द कैश प्राइस? 10,000 में 931 is the interest. So how much is the cash price? हम देखो जब भी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो जो कार का ओरिजिनल कॉस्ट है उसके लिए भी पैसा पे करते हैं, और जो इंटरेस्ट है, जो सैक्रिफाइस वेंडर ने किया है 12 मंथ्स का, उसके लिए भी पे करते हैं. तो 10,000 minus 931, remaining amount is for the asset. So how much it is? 9069. 10,000 minus 931 करो, you will get how much amount? 9069. Now how much is the balance cash price? So how much we will कितना balance था? 18,613 minus ना आज कितना पे किया? 9069. कितना पे किया? 9069. तो कितना बैलेंस हो गया? How much balance you are getting? Minus, you are getting 9544. यही आंसर मिल रहा है. 9544 is the pending amount. अभी कैश कार का फाइनली लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे कार का कितना पैसा देना बाकी है? 9544. कैसे मिला? बैलेंस कैश प्राइस था 18,613 एंड इस ईयर में हमने पे किया 9069. सो हाउ मच फाइनली, हाउ मच इज रिमेनिंग? 9544. हमने 10,000 का इंस्टॉलमेंट पे किया है. तो पहला 10,000, सेकेंड 10,000. नाउ ये करने से पहले डेप्रिसिएशन फिर से निकालना है. एवरी ईयर एंड में डेप्रिसिएशन होता है, बट बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन चेंज होगा क्या? कैलकुलेशन नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, बिकॉज एक बार हमने निकाल दिया है. कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, हाउ मच इज डेप्रिसिएशन? हर बार स्ट्रेट लाइन मेथड मीन्स सेम अमाउंट पे डेप्रिसिएशन निकालना है. 10% into 1 year will give us 3725. डेप्रिसिएशन सेम ही रहने वाला है, बिकॉज डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड. So every year depreciation will remain the same. Now next year is how much? 31/12/2013. Again हमारा फाइनल इंस्टॉलमेंट है, बिकॉज 3 बार इंस्टॉलमेंट पे किया है और अभी हमें फिर से निकालने का जरूरत है क्या? बताओ मुझे. हमने इंस्टॉलमेंट में 10,000 पे किया, बट हमें अभी पे करना कितना था? फाइनल कैश प्राइस कितना है? 9544. बट हमने कितना पे किया? हमें पे कितना करना था? बट हमने ज्यादा पे किया. तो जो एक्स्ट्रा पे किया वो क्या होगा? दैट विल बी द इंटरेस्ट. सो व्हाट आई विल डू, आई विल डायरेक्टली राइट हियर 9544. ये जो फाइनल कैश प्राइस है, देखो हमने 10,000 का इंस्टॉलमेंट पे किया, बट फाइनल बैलेंस कैश प्राइस कितना था?
ओनली 9544 मीन्स मोटर कार का हमें 30 कितना बाकी था पे करना, सिर्फ 9544 और हमने कितना दिया 10,000। तो जो एक्स्ट्रा पे किया दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। कैसे मिलेगा वो बैलेंसिंग फिगर? 10,000 में से 9544 माइनस करो, 456. This is the balancing figure. This is what? This is the balancing figure. फाइनल इंटरेस्ट जो हमने पे किया। अब इसके बाद कोई भी कैश प्राइस बैलेंस नहीं है, पूरा पे कर दिया हमने, नथिंग इज पेंडिंग, पूरा मोटर कार का पेमेंट कर दिया। अब लास्ट ईयर में भी डेप्रिसिएशन तो रहेगा ना। अगेन जब तक मशीनरी यूज होगा तब तक देयर विल बी कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन till the depreciation till the machinery reaches to 0 तक डेप्रिसिएशन तो होगा ही। सब सेम मेथड से निकालने वाले। अगर आपको वर्किंग नोट में नहीं दिखाना ये वाला स्टेप तो ऑल्सो यू विल गेट द सेम अमाउंट, you will get the same amount 10% into 1 which will give us 3725. So this is done. Now what we will do, तो जरा टोटल करते हैं इसको। 10,000 4 times is how much? 40,000। ये सबको ऐड करोगे ना 1363, 931 and 456 you should get 2750। ऐड करके देखो 1363 प्लस 931 प्लस 456 आपको मिलेगा 2750। एंड 10,000 प्लस 8,637 plus 9069 plus 9544 you will get total price of the motor car which is 37,250। कैश प्राइस तो ओरिजिनल कॉस्ट ही है ना, ये सबको ऐड करके मोटर कार के प्राइस के ऊपर तो नहीं आना चाहिए बिकॉज मोटर कार का प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 37,250। तो पूरा ऐड करके आपको यही आंसर आना चाहिए। उससे ज्यादा आप ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जो भी दे रहे हो वो इंटरेस्ट है, वो कितना है 2750। दैट वाज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। क्रॉस चेक द आंसर। एंड टोटल इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है 40,000 बिकॉज डाउन पेमेंट में 10,000 दिया एंड 3 इंस्टॉलमेंट्स दिया। सो 10 plus 10 plus 10 4 times 10,000 is 40,000। So with this our calculation of interest and depreciation is done। But हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन में बोला है पास जर्नल एंट्रीज। क्या पूछा है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कारमार्ट and auto riders। So let us come to that part। जर्नल एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। We want to pass journal entries in the books of कारमार्ट who is the buyer and auto rider who is the seller। एक साथ कर लेते हैं then it becomes फटाफट हो जाएगा। एक साथ करेंगे तो एक ही साथ में बायर का भी एंट्री देखते हैं और सेलर का भी एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्रीज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ यू लास्ट लेक्चर। So now let us do the revision and journal entry is very easy. It is related to 11th standard। तो आप just basic purchase sale उससे related ही journal entry है। So I will again explain while we are doing the sum। So सबसे पहले ये hire purchase का जो प्रोसीजर है वो कब स्टार्ट हुआ? 1 जनवरी 2000। सी द गिवन इन द क्वेश्चन। कभी परचेस किया? 1 जनवरी। कारमार्ट एंड कंपनी वेंट टू ऑटो राइडर्स कंपनी, वेंट टू द शोरूम, बॉट अ मोटर कार। अगर वो पूरा पैसा एक ही बार में दे देता तो ये हायर परचेस का सवाल ही नहीं था। बट उसने क्या किया? कारमार्ट ने ऑटो राइडर कंपनी के साथ हायर परचेस एग्रीमेंट में एंटर किया।
सो हायर परचेज एग्रीमेंट के हिसाब से पहले डाउन पेमेंट करना है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट डेट में इंस्टॉलमेंट पे करना है। सो सबसे पहला 1 Jan 2011, विच इज दैट डेट 1 Jan 2011 को क्या हुआ, बायर ने कार परचेस किया, सेलर ने कार सेल किया। अब बायर के लिए, बायर क्या रोज मोटर कार खरीद रहा है, ये वन टाइम परचेस है। वन टाइम परचेस मींस बायर के लिए असेट है। कौन सा असेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कौन सा असेट है, मोटर कार अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट इज अ असेट टू द कारमार्ट कंपनी। कितने में खरीदा, व्हाट इज द कॉस्ट, 37,250, 37,250 इज द कॉस्ट ऑफ द असेट। मोटर का डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट है ना, किससे खरीदा, बिकॉज पूरा पैसा नहीं दिया। अगर पूरा पैसा देता तो हम बोलते टू कैश, पैसा बाहर जा रहे, बट आर वी गोइंग गिविंग द फुल पेमेंट। तो यहाँ पे ऑटो राइडर का नाम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑटो राइडर से हायर परचेस में मोटर कार परचेस किया है। सो द नेम ऑफ द ऑपोजिट पर्सन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव टू मेक द पेमेंट इन द फ्यूचर। सो किससे खरीदा, ऑटो राइडर्स कंपनी अकाउंट। हाउ मच इट इज, 37,250। हाउ मच इट इज, 37,250 बीइंग मोटर कार परचेस। इसको क्या बोलेंगे, बीइंग मोटर कार परचेस्ड। नाउ कम टू द ऑटो राइडर। ऑटो राइडर ने मोटर कार परचेस किया या सेल किया सेम डे व्हेन द कारमार्ट परचेज द मोटर कार, ऑटो राइडर सोल्ड द मोटर कार। सो ऑटो राइडर के लिए ये क्या है, सेल्स है। एंड ऑटो राइडर का काम है दिन में 10 मोटर कार, 100 मोटर कार या जितना भी मोटर कार के लिए डिमांड आता है उतना सेल करना, एक दिन नहीं, डेली। दिस इज दैट बिजनेस। सो फॉर देम इट इज व्हाट, इट इज सेल्स। इट इज नॉट मोटर कार गोइंग आउट, इट इज सेल्स, बिकॉज इनके लिए मोटर कार असेट नहीं है, इनके लिए मोटर कार गुड्स है। सो ये लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, कितने का मोटर कार सेल किया, 37,250 का। एंड डेबिट में पैसा आ रहा है क्या पूरा, आर वी गेटिंग द फुल पेमेंट, नो। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom it is, to whom it is sold, the name of the person to whom the motor car is sold is important. So what is the name, कारमार्ट। तो कारमार्ट में कारमार्ट का नाम नहीं आता और ऑटो राइडर में ऑटो राइडर का नाम नहीं आता, ऑपोजिट पर्सन का नेम इंपॉर्टेंट है। तो कारमार्ट अकाउंट डेबिट, हाउ मच इज द अमाउंट, 37,250। नरेशन, बीइंग मोटर कार, बीइंग मोटर कार या बीइंग मोटर कार सोल्ड, सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस भी लिख सकते हैं, परचेज ऑन हायर परचेज बेसिस ऐसा लिख सकते हैं, बट मैंने सिर्फ परचेज एंड सोल्ड लिखा। यू कैन राइट परचेज ऑन हायर परचेज बेसिस, सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ ऑन द सेम डे कुछ पैसा दिया लिया है, जिस दिन मोटर कार परचेस एंड सेल किया, क्या उस दिन कोई पैसा मिला या पे किया है, दैट इज अ डाउन पेमेंट। सो नेक्स्ट एंट्री सेम डे को होगा फॉर द डाउन पेमेंट। ये परचेस और डाउन पेमेंट सिर्फ एक बार होती है। तो डाउन पेमेंट कारमार्ट ने किया है, एज द कारमार्ट मेड द डाउन पेमेंट और रिसीव द डाउन पेमेंट। मेड, कारमार्ट बायर है तो उसने डाउन पेमेंट किया है, तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। बट हु इज रिसीविंग, ऑटो राइडर्स। सो वी विल राइट ऑटो राइडर्स कंपनी अकाउंट डेबिट, कितना, हाउ मच, 10,000। टू व्हाट इज गोइंग आउट, कैश बैंक अकाउंट, सिर्फ बैंक लिखेंगे तो भी चलेगा। So we will write, what is it, being
डाउन पेमेंट मेड, दिस इज डाउन पेमेंट। और ऑटो राइडर को क्या पैसा मिलेगा? बिकॉज ऑटो राइडर ने सेल्स किया है, उनको डाउन पेमेंट का पैसा मिलेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग, मनी इज कमिंग। हाउ मच मनी इज कमिंग? डाउन पेमेंट का अमाउंट है 10,000। एंड हु इज द पेयर, कौन पैसा दे रहा है? कारमार्ट। सो वी विल राइट टू कारमार्ट 10,000। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड। ये हो गया फर्स्ट डे का इंसिडेंट। कार खरीदा, बेचा, डाउन पेमेंट रिसीव किया, पे किया, दैट इज डन। नाउ डायरेक्टली वी विल मीट ऑन द डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट। पैसा चाहिए ना इंस्टॉलमेंट, सो डेट क्या है? 31 दिसंबर 2011। पहले इंटरेस्ट का एंट्री पास करेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट का। इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। On the date of installment, 2 entries will be there, one for interest, one for down payment. So interest कितना है? देखो सबसे पहले साल का इंटरेस्ट कितना है? 1363। तो मुझे बताओ कारमार्ट को इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा या पे करना है? पे करना है। सो इंटरेस्ट इज अ एक्सपेंस टू कारमार्ट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं दैट इज एक्सपेंस टू द कारमार्ट, क्योंकि कारमार्ट को एडिशनल पेमेंट करना है बिकॉज ही हैज परचेज्ड ऑन इन हायर परचेज। हायर परचेज में खरीदा है ना, तो इंटरेस्ट एडिशनल देना है। सो यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बिकॉज इंटरेस्ट इज अ एक्सपेंस। कितना? 1363। और किसको पे करना है इंटरेस्ट? ऑटो राइडर को। सो वी विल राइट ऑटो राइडर्स कंपनी अकाउंट। हाउ मच इज द अमाउंट? 1363 being interest charged. Yes, exactly, being interest चार्ज एट 5% भी लिख सकते हो। और नेक्स्ट, ऑटो राइडर के लिए इंटरेस्ट इनकम है, बिकॉज उसको इनकम है ना, एक्स्ट्रा मिलेगा सैक्रिफाइस के लिए। सो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम है तो क्रेडिट में आना चाहिए। टू इंटरेस्ट, हाउ मच इज द अमाउंट? 1363। एंड हु विल पे? कारमार्ट डेबिट, कारमार्ट अकाउंट डेबिट 1363। ये भी नरेशन सेम। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, रिसीव अभी नहीं, रिसीव इंस्टॉलमेंट के साथ होगा। अब तो हमसे फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट इंटरेस्ट पता चल गया कितना मिलना है, कितना पे करना है। Now on the same date we will make the payment of installment. अब बताओ who will receive the installment and who will pay the installment? Buyer will pay the installment. Buyer कौन है? कारमार्ट। So वो installment पे करेगा तो पैसा बाहर जाएगा। किसको मिलेगा? Who will get the money? Auto riders account debit। कितना पेमेंट है इंस्टॉलमेंट का? 10,000। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है 10,000। एंड व्हाट इज गोइंग आउट? टू कैश बैंक। हाउ मच इट इज? 10,000। नाउ टेल मी व्हाट इज इट? इसका नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट अमाउंट पेड, ठीक है, बीइंग इंस्टॉलमेंट अमाउंट पेड। और कम टू द ऑटो राइडर्स। ऑटो राइडर्स का क्या है? पे करेगा इंस्टॉलमेंट या रिसीव करेगा? रिसीव करेगा, तो व्हाट विल कम इन? कैश बैंक अकाउंट डेबिट। हाउ मच इंस्टॉलमेंट? 10,000. This installment is including interest.
1363 इसमें एडेड है। हमने देखा ना ये 10,000 का बाइफोकेशन, 10,000 का बाइफोकेशन क्या, इंटरेस्ट 1363, कैश प्राइस 8637, सो 10,000 में दोनों इंक्लूडेड है। सो टू हु किसका नाम लिखेंगे, कार मार्ट अकाउंट 10,000, इसको बोलेंगे बीइंग इंस्टॉलमेंट मेड, सॉरी बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, दिस इज ऑल्सो डन। ये साल का इंटरेस्ट भी हो गया, इंस्टॉलमेंट भी हो गया। नाउ वी कम टू द ईयर एंड, ईयर एंड भी यही है 31 दिसंबर। सो ईयर एंड में हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सो सेम डेट पे वन मोर एंट्री विल कम, व्हाट इज इट, depreciation. Tell me, depreciation is a profit or a loss? Depreciation is a loss. So debit all expenses and losses. Debit में लिखेंगे depreciation account debit. Now tell me, depreciation में किसका वैल्यू कम होता है, असेट का वैल्यू। सो मोटर कार, मोटर कार डेबिट में था जब खरीदा था, देखो फर्स्ट एंट्री में डेबिट में है। जब वैल्यू कम होता है तो हम उसको कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में। हाउ मच इज द अमाउंट, 3725, 3725, करेक्ट। हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, देखो 3725। सो वी विल राइट हियर बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, क्या लिखेंगे, being depreciation charged at 10% लिखना है तो लिखो। यहाँ पे बताओ, सेल जब हम करते हैं तो हम रोज बहुत सारा मोटर कार सेल करते हैं, तो सेल्स में डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। सो नो एंट्री, वी विल राइट हियर व्हाट, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ द सेलर, देयर इज नो डेप्रिसिएशन एंट्री। अब डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट को हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ईयर एंड में नॉमिनल अकाउंट्स को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सो सेम डे में जब हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, उसी डे में हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द, वी विल ट्रांसफर द डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो किधर है, कौन से साइड में है, डेबिट में। डेप्रिसिएशन किधर है, डेबिट में। इसको कैंसल करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू इंटरेस्ट जो भी अमाउंट है, टू डेप्रिसिएशन जो भी अमाउंट है। हाउ मच इज द अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट है, सॉरी इंटरेस्ट का अमाउंट है 1363, तो हम इधर लिखेंगे 1363, और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज 3725। दोनों को ऐड करो, ये दोनों किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट debit. How much it is coming, 1363 plus 3725, we are getting 5088। तो इसको बोलेंगे being balance transferred, इसको क्या बोलेंगे, being balance transferred। Now same way यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन नहीं है, बट इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इज इन द व्हाट साइड, क्रेडिट साइड। कैंसल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। हाउ मच इज द अमाउंट, 1363, ये इनकम है, किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बिकॉज इनकम क्रेडिट साइड में होता है। 1363 और नरेशन विल बी बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड। विद दिस 1 ईयर का पूरा एंट्रीज हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है,
नेक्स्ट ईयर का एंट्री पास करना है, बट नेक्स्ट ईयर में परचेज की एंट्री फिर से आएगी, डाउन पेमेंट की एंट्री फिर से आएगी। डाउन परचेस एक बार हुआ, ये पर्टिकुलर मोटर कार एक ही बार परचेस होगा, उसका डाउन पेमेंट एक ही बार होता है, फर्स्ट पेमेंट इज द डाउन पेमेंट, बार बार डाउन पेमेंट नहीं होता, इट इज डन ओनली वंस। तो इसके बाद जो रिमेनिंग एंट्रीज है ना, दैट विल कम एवरी ईयर। तो हम फिर से जाएंगे नेक्स्ट ईयर, दैट इज 31/12/2012 को, और हम फिर से इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट क्या है, इसके लिए बायर के लिए एक्सपेंस है, नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 931, नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 931, सो विल राइट हियर 931। एंड किसको पे करना है, ऑटो राइडर्स को। सो सेम एंट्रीज हमें फिर से करना है, ऑटो राइडर्स कंपनी कितना अमाउंट है 931। सो सेम इन द ऑपोजिट बुक इंटरेस्ट रिसीव होगा और इंटरेस्ट इनकम है, सो इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट क्रेडिट और इनकम एंड गेन 931। और किसको पे करना है, आई मीन कौन पे करेगा, कारमार्ट अकाउंट डेबिट कितना 931। सेम नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, here also same, being interest charge, सेम एंट्रीज रिपीट करना है। तो अब इसके बाद कौन सा है देखो, इसके बाद डाउन पेमेंट, फिर इसके बाद डाउन पेमेंट के बाद क्या आएगा, डाउन पेमेंट के बाद सॉरी डाउन पेमेंट में क्यों जा रहे हैं हम लोग, इधर देखो इन ईयर फर्स्ट हम इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट। तो ये जो एंट्री है देखो सेम एंट्री रिपीट होगा, सेम एंट्री, पैसा पे करना पड़ेगा हायर परचेसर को और रिसीव करेगा वेंडर। सो सेम एंट्री एंड डेप्रिसिएशन का भी सेम एंट्री रहने वाला है। सो शैल आई कॉपी पेस्ट, सेम एंट्री यहाँ पे आएगा एंड डेट क्या रहेगा 31/12/2012, हियर ऑल्सो 31/12/2012। नाउ इसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद अगेन वी हैव टू ट्रांसफर क्लोजिंग एंट्रीज। सो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन भी हो गया, क्लोजिंग एंट्री भी सेम रिपीट होने वाला है। सो सेम डेट में सिर्फ अमाउंट विल चेंज, रिमेनिंग एंट्रीज विल रिमेन द सेम। सो इंटरेस्ट देखो यहाँ पे एक्सपेंस है, डेबिट में है इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, डेबिट में है, तो उसको कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट में आ जाएगा। एंड कहाँ पे आएगा ये सब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड टू depreciation. So same amount, how much is the amount of interest 931, and how much is the amount of 3725. So दोनों को add करो, how much you will get 4656. So इसके बाद यहाँ पे हमें सिर्फ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है, डेप्रिसिएशन नहीं है। इन द बुक्स ऑफ द वेंडर वी हैव टू ओनली ट्रांसफर इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट टू P&L एंड इंटरेस्ट इनकम है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 931 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. It is the opposite entry because it's a income being balance transferred. Same narration,
सेम नरेशन लिखना है। इसके बाद लास्ट ईयर इज रिमेनिंग, लास्ट ईयर ऑल्सो ऑल द एंट्रीज विल रिमेन द सेम, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। तो लेट अस डू कॉपी पेस्ट। लास्ट ईयर में कौन सा सेम एंट्री आएगा? परचेस का नहीं आएगा, डाउन पेमेंट का नहीं आएगा, वो एक ही बार होता है। तो कौन सा रिपीट होगा? इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, ट्रांसफर एंट्री, डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर एंट्री। तो ये पूरा कॉपी करके लेट अस पेस्ट इट। तो अमाउंट क्या है लास्ट ईयर के इंटरेस्ट का? 456 ना, तो लिखेंगे 456। सेम एंट्री हमें रिपीट करना है, 456। नरेशन विल रिमेन द सेम। एंड यहाँ पे डाउन पेमेंट तो सेम है 10,000 का, फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी सेम है। फाइनली यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा? 456। दोनों को ऐड करो, हाउ मच यू विल गेट? 3725 प्लस 456, 4181, 4181. With this what has happened? The sum is over. क्या किया हमने? सेम एंट्रीज। हमें क्या करना है? ये डेट भी सेम पेस्ट करना है। इसके साथ देखो एंट्रीज सेम है, एंट्रीज याद करना है, सिर्फ एक साल का याद किया, सेम हमें एवरी ईयर यूज करना है। सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट अगर डिफरेंट मेथड है तो चेंज होगा, जो हम ऑलरेडी इधर कैलकुलेट करते हैं। इन द वर्किंग वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ऑल द इयर्स इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, सिर्फ वही हमें वहां पे जर्नल एंट्री में यूज करना है। विद दिस सम इज डन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।